Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study of science, Sathology means a science of truth, a study of truth. It is a word coined by us as a true antonym of mythology. Myth in Sanskrit means a lie, fake, or imagination. Mythology means a study or science of lie, fake, or imagination. So, in these discussions that you love it so much, we only focus on trying to bring out the real personalities and also the real stories and debunk the mythology tag to many of the stories coming from Mahabharata, Ramayana, and other ancient Vedic scriptures. Uh, Today, we have a very, very special guest, and we all loved him when he put the Mahabharata serial. He acted in the Mahabharata serial in a very major role, and you have appreciated his performance, and also he depicted the character of a Duryodhan in a very powerful way. And most of us, we have grown through that videos. In fact, I was telling that my children have learned Hindi through that serial, and I had to stop them from speaking because they were speaking in pure Mahabharata Hindi, and which even Indians don't speak today. So, without delay, let us welcome Shri Puneet Isar. Hi guys, how are you all? Thank you so much for joining today, and it's a real honor to have you here. So, one of the things which you said in many, many shows, and one of the things said that Mahabharata serial changed your outlook towards life. You said it many times in many places. So, what was जी the powerful messages that changed your life itself while you were doing the serial? there was this very famous writer by the name of पंडित नरेंद्र शर्मा जी. ये इन्होंने पूरी महाभारत की जो हमारी जो कहानी थी, जो हमने सीरियल बनाया था, उन्होंने लिखी थी. So when I was signed with Mr. B.R. Chopra to play Duryodhana's character, once I met this gentleman. He was a very, very learned man. And I asked him, sir, people keep usually talking about, I was a young boy when I was doing Mahabharata. So I asked him, people keep saying that this is supposed to be, is it a mythology or is it real? ये क्या है? तो because the Western जो history हमें पढ़ाई गई है, जो लिखा गया है कि भाई ये सब तो mythology है, झूठ है. तो when I asked him, he said कि बेटा अगर तो महाभारत जो है ये अगर काल्पनिक है, अगर ये सत्य है, तो ये अद्भुत है. अगर महाभारत सत्य है, यथार्थ है, तो ये जो है अद्भुत है. और अगर ये काल्पनिक है, अगर ये मनगढ़ंत बनाई गई है, तो ये महाअद्भुत है. बिकॉज ऐसी कल्पना करना ही मतलब नोबडी कैन इवन इमेजिन. तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा महाभारत जो है ये बिल्कुल यथार्थ है, ये सत्य है. ये तो क्योंकि हमारे जो देश को 70 साल हमें अंग्रेजों ने राज किया, people ruled us. So because they wanted to rule our country, they didn't want, they saw when they came to India, they realized that this country is so rich with its heritage and culture. So how do we rule them? So first thing that we have to do is negate all their beliefs. They wanted to destroy all our beliefs, saying that no, this is all mythology, and and then they started imposing things on us. The whole education system was changed. For the last 70 years, we've been learning, and such a sad thing, after being independent for the last 70 years, still people have been following what their norms were created. So I would like to tell all your people who are listening to me today, yes, we come from such a country where it is absolutely, it's a true thing. And हमारे यहाँ पे प्रमाण हैं उसके. We've got facts, we've got in fact जैसे वर्ल्ड जो है, दुनिया की जो देश वाले हैं वो आर्कियोलॉजी में बहुत काम करते हैं. they spend so much money. हमारे देश में वो नहीं हुआ. अगर हम ठीक से इसे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये सत्य है. Very well put it. In fact, in one of my books, I wrote the new map of Mahabharata. It was worldwide. जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, he sent Arjun to the north, Bhim to the east, and Nakul to the west, and Sahadev to the south. And Rajasuya Yajna is the most difficult yajna.
ever done, because for the rest of the life you have to collect taxes. If you do not collect taxes, then yajna is broken. And in that travel of Arjun, we see that he crossed Shadoba Nadi. And in my writings, I proved it is Shardyaz Nadi of Kyrgyzstan. And that is the southern boundary of Uttar Kuru. And so all these different facts were mentioned. So did you, like, when you were doing this serial, and you played a very important role, because of which Mahabharat war happened, because of that personality. So did you learn any lessons which the youth should learn from that character of yours? You see, the best part about Mahabharat is that it is completely, it is not like, there are no whites and no blacks. Nobody is completely white or completely black. All are gray characters. A person who's got maybe 98% of white in him has 2% of black. And a person who's almost black, maybe 99.9% black, but he's got 0.1% of white in him, that makes him a gray character. Every character has got his reasons why he behaved that way. उसीलिए तो महाभारत हुई. और महाभारत हमें सिखाता है हमें क्या नहीं करना चाहिए. What we should not do. That's the best part of Mahabharat. Ramayana teaches us what we should do. रामायण सिखाता है हमें क्या करना चाहिए, और महाभारत सिखाता है हमें क्या नहीं करना चाहिए. रामायण आदर्श पुत्र, आदर्श बेटा, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, like epitome of आप हर चीज is so good. How a person should be is Ramayana, and how a person behaves in given circumstances is Mahabharata. और कहते हैं ना कि अगर अगर धृतराष्ट्र जो है, जो पुत्र बहुत था उसे, लेकिन उसकी पत्नी गांधारी ने, बिकॉज हस्बैंड अंधा था, तो उसने आंखों में पट्टी बांध ली. तो ये तो लिटरल सेंस हुआ, लेकिन उसका अंडरलाइन अंडर करंट ये है कि अगर आपका पति अंधा हो, इफ योर हस्बैंड इज ब्लाइंड, यू हैव टू बी हिज आईज, यू हैव टू कीप गाइडिंग हिम, यू हैव टू कीप टेलिंग हिम. तो क्योंकि मां ने भी पट्टी बांध ली, इसलिए महाभारत. ऐसे कई प्रमाण, बहुत खूबसूरत है महाभारत. No, what a depth you have touched it. We have to be gray. See, the human life, this is a very deep topic. A person like you who has, I would say, after the Mahabharata serial, you have lived Mahabharata every day of your life. And I can say that because I can see in your talks also. So one thing which you said, the gray, the human experience is never black and white. If it was black and white, then we would all be robots. But we are not. So on this gray, what you mentioned, gray, what do you mean by the gray? This is what people would like to understand also. Gray character in the sense, sometimes you know what is right. You know what is right, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम given परिस्थितियों में, in the given circumstances, हम वो सही काम नहीं करते. हम अपने हमारे बेसिक जो हमारे विकार हैं. देखिए, सबसे दुर्योधन का जो सबसे खूबसूरत बात मैं बताना चाहता हूं, उसमें 5 विकार कूट कूट के भरे हुए. अहंकार, देन उसका अहंकार, उसका जो फिर ईगो, फिर एक था कि एक गिवन सिचुएशन में एकदम ही खुश हो जाना या फिर एकदम रोते रहना. मींस ही डिडंट हैव कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस. वो कहते हैं कि संकल्प विकल्प आत्मकम मनः, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, आपको एक जैसे बिहेव करना चाहिए. तीसरा, चौथा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन. वो देन ग्रीड, स्वार्थ. ये जो चीजें हैं, जब उसके गुरु उसको बचपन में जब उससे बात करते हैं कि बेटा तुम में ये 5 जो विकार हैं, ये 5 सेंस इतने भरे हुए हैं, अगर आप इन पर नियंत्रण पालोगे तो यू कैन बिकम गॉड. तुम अच्छे से रूल कर सकोगे. Because he was the legal heir to the throne. And वो बच्चा होके आर्ग्यू करता है अपने गुरुओं से, भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य से, कि पहली बात है, मेरे में अहंकार क्यों ना हो. I should have that ego. मेरे में अहंकार, एंगर होना चाहिए. क्यों? एक अहंकार किस लिए होना चाहिए कि भाई I belong to कुरुवंश. कुरुवंश ने क्या क्या उपलब्धियां की हैं, क्या क्या विजय प्राप्त की है, तो मुझे उस पर घमंड क्यों ना हो अपने पूर्वजों के मान पर, और मैं उनको कंस्ट्रक्टिव बना के आगे राज करूंगा.
फिर वो कहता है कि जो गुस्सा होता है, एंगर इज अ वेरी गुड ड्राइविंग फोर्स फॉर वन टू अचीव सक्सेस। यू नो यू हैव टू दैट ड्राइव, अंदर से एंगर होना चाहिए। तो मेरे में क्यों ना एंगर हो, जो मेरे पिताश्री के साथ हुआ मैं नहीं मानता। भाई मेरा जो पिता था वो विचित्र वीर का ज्येष्ठ पुत्र, उसे राज्य गद्दी नहीं मिली क्योंकि वो नेत्रहीन था, लेकिन मैं नेत्रहीन नहीं हूं। तो मींस आई एम द लीगल हेयर टू द थ्रोन, सो दैट एंगर इज ड्राइविंग मी टू अचीव समथिंग। Then he says, of course, how can when your child is born, he's born with basic emotion. मैं क्यों ना, जब मुझे वो खुशी होती है, आप एक छोटे बच्चे को भी जब मुंह में आप उसके शहद डालते हैं तो बच्चा स्माइल करता है, तो बोलता है मुझे और दो। आप एक छोटे बच्चे को एक शिशु, एक छोटे से बच्चे को आप उसके मुंह में अगर आप उसमें कड़वी चीज डालेंगे तो ही विल रिएक्ट। आप एक बच्चे को एक अच्छा चेहरा दिखाएंगे, बच्चा खुश होगा। तो कहता दीज आर बेसिक इमोशन, मैं नहीं छोड़ना चाहता। जब मैं खुश होऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, और अगर मेरा कोई नियर एंड डियर मरेगा तो मैं क्यों नहीं रोऊंगा। तो ही वाज एब्सोल्युटली ह्यूमन। द बेस्ट पार्ट अबाउट ग्रे बीइंग, इट्स बीइंग ह्यूमन। फिर वो कहता है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षा जब तक आप में एम्बिशन नहीं होगी, आप महत्वाकांक्षा ही तो है जो आपने इतनी दुनिया में इतनी उपलब्धियां देखी हैं, लोगों ने क्या क्या चीजें इन्वेंट की हैं। दैट इज द ड्राइव टू अचीव समथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। They've made forts, they've made bridges, they've made palaces, they've made weapons, they've made planes बनाए हैं, टेक्नोलॉजी। ये सब ड्राइव कहां से आती है? Till you are not ambitious, you cannot do it. So I want to be ambitious. Can you imagine? तो महत्वाकांक्षा की बात करता, फिर वो कहता है ग्रीड। बोलता ऑफ कोर्स आई शुड बी जेलस अबाउट जेलसी, ग्रीड मेरे में होनी चाहिए, बिकॉज अगर नहीं तो फिर अकर्मण्यता आ जाएगी, मैं तो कंप्लीसेंट हो जाऊंगा। जब मैं देखूंगा कि अगला बंदा मेरे से ज्यादा रिच है, तो मेरे में वो ग्रीड होनी चाहिए, कि जेलसी होनी चाहिए कि मुझे उससे ज्यादा अमीर बनना है, या वो मुझसे ताकतवर तो मुझसे उससे ज्यादा ताकतवर बनना है। सो दैट एम्बिशन। बट हुआ क्या, ऑल दीज 5 जो विकार हैं वो उन्हें कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर पाए, वो डिस्ट्रक्टिवली यूज किया, तभी उसका अंत बुरा। तो कहने का मतलब ये 5 विकार जो हैं ये हर इंसान में है। These 5, ये जो 5 अभाव हैं जिंदगी के, these emotions are there in every human being. How आप कैसे उन पर अंकुश पाते हैं, how you have control over the 5 emotions, how you do it, that is. You said it so well. It looks, you have read it very well, because one of the things Duryodhan tells Dhritarashtra is that this is the same Arjun who has even gone to the place where the cranes come annually to India. And he says, so we have to take away their power through any means that we have. Yes. And he says that. And then again, when he says, and now he is referring to Siberia, the cranes come from Siberia to here. So the spread of Mahabharata was global. It was not just what the British gave us the map. And you said it so well in the beginning that they spread the rumors that Mahabharata should not be kept in the house, which is a worst thing. And in the same Mahabharata comes Bhagavad Gita, which should be kept in the house. Now it's a contradiction right there. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yatra Yogeshwar Krishna, Yatra Partha Dhanudhara. So this mythology has weakened Indians, cut them away from their ancient heritage. Like you said, Yes. even if you consider it as real or unreal, but still Mahabharata is a useful source of good moral knowledge. Absolutely. आप देखिए, मैंने कहा ना, महाभारत हमें सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए, what not we should do. महाभारत में दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है कि जानामि अधर्मम, पहले कहता है जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही, कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं है, मैं वो उसका पालन नहीं करूंगा। बोलता है जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, अर्थात मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मैं उसमें विश्वास करता हूं, इसलिए मैं अधर्म को नहीं त्यागूंगा। मींस ही वाज सच अ ट्रूथफुल पर्सन, और इस यही कारण था कि उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। So well put, because now in one sentence he has explained what is pravritti, what is nivritti, and which is the important. See, when Vaishampayan, when Vaishampayan is a disciple of Vyasdev,
and he's the one who spoke Mahabharat first in Takshila, which is in Gilgit Baltistan today, to Janmajay. That's where Mahabharat was first spoken, preached, or you can say. Takshashila was the first ancient university of the world जहां पे लोग आके पढ़ा करते थे. It was known as Takshashila. Yes. और अपना बिहार में वहां पे थी नालंदा. Right. Nalanda University. So that's the first spoken, and then when he is speaking, one thing he mentions there, that Mahabharata has everything which is contained in all the 4 Veda, plus more, because Ganesh ji himself is writing it. And my question to people is, you pray to Ganesh every day. Is he a fake personality? If he's a fake personality, then why do puja so much? The Mahabharata is written by him and spoken by Vyasdev. So the personalities make Mahabharata real. Who is writing it? Who is speaking it? And the characters which are mentioned. Now all the places are existing in India even today. Dwarka is there, Hastinapur is there, and gradually the fake theories of Aryan invasion is being repelled because of Mahabharata. What is your view on that? It's absolutely true. It's a wrong. ये तो अंग्रेजों ने किया है कि जी हम लोग जो एरियन सुप्रीमेसी और एरियंस बाहर से आए थे, ये बिल्कुल झूठ है. ये यहीं के लोग हैं जी. और आपको बताऊं, जैसे ऋग्वेद है, लोग कहते हैं कि सब 2000 साल पहले. नो, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है और सरस्वती नदी को सूखे हुए 8000 वर्ष हो चुके हैं. तो ऋग्वेद तो उससे पहले लिखा गया है. आपको मैं छोटी छोटी महाभारत की बातें बताना चाहूंगा. जैसे देखिए कि कहते हैं भीम जो था वो दुश्मनों के हाथी को सूंड से पकड़ घुमा के हवा में फेंक देता था और हाथी वापस नहीं आते थे. तो दैट मीन्स वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर चले जाते थे. तो मीन्स दे टू बिकम लाइक सैटेलाइट. सो दे न्यू अबाउट ग्रेविटेशनल एनर्जीज. अब आप देखिए हमारे यहाँ पे जो सबसे बहुत ही छोटी सी चीज, आज से अगर 100 साल पहले मैं कहता, जो आज हम टेक्नोलॉजी में जो बात कर रहे हैं, हम कहते हैं 100 साल पहले कहता कि साहब यार अमेरिका में एक वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, या लंदन में हो रहा है, लेट्स वॉच दैट वर्ल्ड कप लाइव. पीपल वुड लाफ, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बट टुडे इट इज पॉसिबल. आप कहाँ बैठे हैं, आपके साथ कितने लोग बैठे हैं. मुझे आज हम एक बात में अपना रूबरू होकर हम बात कर रहे हैं. सो दैट टाइम संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत का वर्णन किया था. व्हाट वाज दैट? दैट मीन्स उस वक्त हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी हाई थी. यू नो, एवरी सिविलाइजेशन गोज थ्रू अ पीक एंड देन फिर उसका डाउनफॉल होता है. आप सोचिए द बेस्ट वॉरियर्स जो अल्फा मेल्स थे जितने, वो सारे मर चुके थे. आप सोचो क्या हमारी जेनेटिक्स हुई होंगी वो जो लोग हुए थे उस वक्त. अब आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं, लाइक दुर्योधन. अब हम कहते हैं दुर्योधन कैसे पैदा हुआ. उसको 100 घड़ों में उसकी मांस के जो मदद से एक मांस का लोथड़ा निकला, उसको 100 टुकड़ों में काट के वेद व्यास ने पूजा करके घड़ों में डाला और 100 बच्चे पैदा हुए. आज टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, लाइक ये सब. तो ये टेक्नोलॉजी उस वक्त थी, नियोग की परंपरा थी. अब कर्ण कहता है, देखिए हम जो ब्रिटिशर्स, अभी हम इनकी जो क्रिश्चियनिटी में अगर आप नोट करेंगे, वो कहते हैं अच्छा वहां पे मदर मेरी इज अ वर्जिन. वो मदर मेरी इज अ वर्जिन, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो रियलिटी. उन्होंने अपना पानी को जो वाइन बना दिया जीसस क्राइस्ट ने. अच्छा वो रेजरेक्ट होके वापस आए, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो रियलिटी है. तो हमारी क्या, ये तो बिकॉज दे वांटेड टू रूल अस, उन्होंने हमारा सब कुछ नकार दिया. ग्रह नक्षत्रों का कितना अच्छा वर्णन है. अगर आप देखें एक एक चीज का, मैं आपको कितने सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं. शस्त्रों का, यू नो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जब उन्होंने अमेरिका में फर्स्ट एटम बॉम्ब का जब उन्होंने वो किया था, तो अमेरिकन, मैं नाम भूल रहा हूं उस साइंटिस्ट का, उन्होंने गीता को कोट किया था कि गीता में हु बहू जो एटम बॉम्ब का वर्णन इज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन गीता. हाउ कम? इतने हजारों साल पहले. दैट मींस दे हैड द टेक्नोलॉजी. आज अभी हम इजराइल की वॉर देख रहे हैं, अभी लोग देख रहे हैं कि साहब उन्होंने पूरा आयरन डोम बना दिया है. वो वहां से मिसाइल्स मारते, 3000 मिसाइल मारे और एक भी नहीं लगा, उन्होंने हवा में ही उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया. व्हाट इज दैट? आप हमारे तीरों का मजाक उड़ाते हैं. जब उन्होंने शस्त्र चलाए, दिव्यास्त्र चलाए, ये बाण, अग्नियास्त्र चलाया, वायुआस्त्र, ये बाण चलाए, किस तरह में डिस्ट्रॉय. दैट मीन्स द टेक्नोलॉजी वाज सो हाई. एक एक चीज का वर्णन है. सो आई थिंक इट इज अमेजिंग.
ये तो हमें, हमारी नॉलेज कम है, अगर हम इस पे डीप जितना जाएंगे हमें और ज्यादा पता चलेगा कि ये बिल्कुल यथार्थ है, ये सत्य है। इसराइल का आपने नाम लिया, उसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन है और जी जी। 6 मिलियन लोग हैं। बॉम्बे का 1/3, हाँ बॉम्बे जी। सिटी का 1/3 है। और जी जी। इंडिया जैसा सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन, आपने बहुत ही अच्छा बात किया वेपन्स पे। यू हैव सेड अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज टुडे द ओनली वेपन्स अवेलेबल आर फायर वेपन्स। ओनली थिंग विद अग्नि अस्त्र, ओनली दैट इज अवेलेबल। अर्जुन बोलता है, एंड आई हैव रेड इन महाभारत दैट he could kill 10,000 people in one go, and therefore it was his act of compassion that he was not willing to fight because he knew his powers. uh, and he says to Krishna, says, no, Krishna is his friend as well, as he's a devotee of Krishna, but he's a friend. He says, I can stop the wind, but I cannot stop my mind. What a statement it is. हाँ Now, हाँ, बहुत ही सुंदर। he says, मैं वायु को रोक सकता हूं, लेकिन मैं अपने मन को नहीं रोक सकता, मन चंचल है. जी। So then Krishna tells him, yogena abhyasena, practice and yog karo and practice karo. Now, such an important lesson which you said so well in one line. It is, didn't take one paragraph. And you also spoke on the Western world. Now, Western world, they started discovering themselves after they started reject the science developed in the Western world after 1600s. Before that, there was no science. And Mahabharata is all about science, because the principal definition of science is you can experience it. Like 1 + 1 is equal to 2, nobody can deny it. You can have 1 apple plus 1 apple, it becomes 2 apples. Now, the important, the entire Mahabharata, if see, my point is very simple. If one is true, second is true, the third, you have to draw the inference, third should also be true. That's a way of logic. Absolutely. I would like to bring a small thing to everybody's notice. एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में प्रॉपर हमारे यहाँ पे कि फलाने पक्ष में, फलाने समय में जब चंद्रमा का वो दे मेंशन टाइम, कि दैट टाइम, अगर आप वो कैलकुलेट, अभी नासा ने कैलकुलेट किया तो दे से इट वाज देयर कि भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने इस समय ली थी तो ये हुआ था। भगवान राम ने, अब देखिए भगवान राम के सेतु का आपको प्रमाण पत्र मिल गया है। अर्जुन ने महाभारत में हमारा वर्णन है कैसा उसने द्वारका नगरी को समंदर में जाते हुए देखा, डूबते हुए देखा, वो कहता है। तो आज हमें द्वारका जो है हमें समंदर के अंदर उसके वो मिला है, तो ये क्या है? तो दैट मीन्स ये जो है ये रियलिटी थी, इट वाज रियल। See, Mahabharata has a lot of material facts also. Like, for example, the dimensions of Dwarka is mentioned. 750 square kilometers, something like that, is mentioned in Mahabharata itself. And the entire area has not been searched properly till date. And it is a duty of our people to do a research. Now we have a lot of data, we have tools, we have a very strong coast guard, we have all kinds of remote sensing technologies also available. It is the time to bring out this history with material facts also, because they all exist. So when you mentioned about the character, see, the people's faith, now Vyasdev says, people's faith develop when they see something on the earth, because we have physical eyes, then we can see that. So what we should be doing and what we should work on, so that we bring this knowledge to our textbooks now. And see, I have written 3 books. One is Narada's Instructions to Yudhishthir, and another one I've written is Yudhishthir, the Prana of Dharma. Now, so what we should be doing now, according to you? क्या है जी, no, क्या है, because I've been a student of history, I've been reading a lot, and not only the Mahabharata, हमारे जो वेद पुराण में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और इतना कुछ नॉलेज है। एक तो क्या है कि हमको ना हमारे जो एक माइंडसेट को जो चेंज किया गया है हमारी पिछली 70 साल की गवर्नमेंट ने, द वे दे हैव मर्डर्ड आवर कल्चर। सो हमारे कल्चर को फिर से हमें उभारना है। उसके लिए क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। मैं अपने माध्यम से, सिंस आई एम अ फिल्म मेकर, मैंने भी एक हाल ही में एक फिल्म बनाई है, संघार द मैसेकर। तो ये जो है गौ हत्या के खिलाफ फिल्म है। इट इज अगेंस्ट काउ स्लॉटर।
और गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए, उसका पूरा वर्णन इतने साइंटिफिक तरीके से किया गया है। और दो साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई थी पालघर में, कि ये संतों को नहीं मारना चाहिए, उस पर आधारित। इट्स अ 47-minute film. I would definitely send you the link. In fact, I can ask Yuvraj to send you the link. You must share the link with all your students, and you must. It's on our YouTube channel called Showman Theatre Productions. If you just anybody could Google that, they could see Showman Theatre Productions, and on that the link is there. The film is there. Sanghar. They must watch it because basically, I want to show what Hindu Dharma is all about. के धर्म का क्या अर्थ है, भारत का क्या अर्थ है, गाय को क्यों नहीं मानना चाहिए, गाय हमारी माँ क्यों है, गावो सर्वस्व मातर है, तो ये क्यों है, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की है। हमें इस तरह बहुत काम करना है, एंड विच आई एम वेरी डीप इनटू। मैं संतों पर बहुत रिसर्च कर रहा हूं, उनके बारे में बताऊंगा। बेसिक माय एजेंडा इन लाइफ इज कि व्हाट गॉड हैज गिवन मी, इट्स टाइम टू पे बैक। आई मस्ट ऐसा कुछ क्रिएट करें कि लाइक आई मस्ट मेक सो मच ऑफ कंटेंट, एंड आई वांट टू मेक प्रो हिंदू, प्रो सनातन कंटेंट, वेयर आई विथ लेट पीपल नो विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विथ प्रूफ्स कि दिस एग्जिस्टेड। कि जब हमारे ऋषि मुनि अपना महाग्रंथों की रचना कर रहे थे, लोग तो जंगलों में स्टोन एज में घूम रहे थे। पीपल वर इन द स्टोन एज। वो बेचारे नंगे घूम रहे थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये जो वेदों ने जो ऋचाएं जो रची हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, हमारे जो पुराण हैं, ये तो कमाल चीजें। एंड इट इज ऑल सिंबॉलिक, कोई गलत नहीं है, उनका एक तात्पर्य है, कोई मीनिंग है, वो तो एक आसानी से समझाने के लिए लोगों को किया गया है, बट इट इज ऑल फैक्ट, इट इज ट्रू। Very well put it. See, the Western world commercializes everything, and our sadhu and sant, rishi, maharishi, all these people, they did it for loka sangraha, for the benefit of mankind. So Vedic heritage not just belongs to India, it belongs to the whole world. It is the duty of the world Absolutely. To protect it. बिल्कुल भाई, हम तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम तो उसमें बिलीव करते हैं। अब आप मैं अपने आपके दर्शकों को, क्योंकि वो इससे जुड़े हैं, भारत का क्या अर्थ है, हमारा जो देश है, लोग इंडिया इंडिया कहते हैं, हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है। वो तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, तो INDIA हो गया, बट हमारे देश का जो नाम है भारत। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं भारत का अर्थ क्या है। भा यानी प्रकाश, आभा, लाइट। रत मीन्स लगे रहना, संलग्न रहना। अर्थ इसको भारत का अर्थ हुआ जो प्रकाश की साधना में रत रहता है, वह भारत है। तो ये जो धरती है, जो साधुओं की, संतों की, ये तो ज्ञान की साधना में, ये तो अपने ये लगे रहते हैं, रत रहते हैं। तो ऐसे लोगों जो लोगों में प्रकाश बांटते हैं, जो लोगों में आलोक बांटते हैं, उनकी निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए। इसी पर हमने हमारी फिल्म बनाई है संघार, द मैसेकर। I would request, please, you also, you must, share the link of a film and ask everybody to watch it. You'll be very proud of the film. No, I'm totally, we'll do it, and we'll do it in a big way, and we'll work with your team to do that. One question I have coming to the mind, and I'm so honored to speak with you because I see the conviction that you have. Now, the cow is a mother. We all know, whether you're an American or a European or African or any other continent you live in, or in India, we all grow up on cow's milk, and that makes her mother. Without that, we cannot grow. All of us drink that. And killing her is actually an act of ingratitude in a big way, because you take the milk and you kill her for any reason. Now it makes logical sense to protect the cow because we have drunk, out of gratitude itself. Now you also mentioned the term which is dharma, and you said Veda, Upanishad, and other things, and you have read it. You said you are studying it. What is the essential message of dharma, or the definition of dharma, which goes out to the people from your reading? I will tell that. See, धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है।
आपको मैं आपके लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, चंद्रमा का धर्म है चांदनी बांटना, बादलों का धर्म है वर्षा कराना, धरती का धर्म है अपने वक्ष पर समस्त प्राणियों, जातियों, जीव जंतुओं को धारण करना। उसी तरह मनुष्य का सबसे बड़ा एकमात्र धर्म है संपूर्ण जातियों में, सब सब जीव जंतुओं में सद्भावना, अपनत्व और प्यार की भावना। ये सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है जो आदि काल से चला आ रहा है, जो टाइम मेमोरियल से चला आ रहा है, वह सनातन। तो हमारा जो सनातन धर्म क्या है, हमें अपनत्व, एकता और भाईचारा ये सिखाता है। ये हमारा सनातन धर्म है। तो धर्म का मैंने अर्थ बताया आपको। जैसे दूध का धर्म है श्वेत रंग, रक्त का धर्म है लाल रंग, तो मनुष्य का धर्म है मनोर्भव। सबसे पहले मनुष्य बनो, और पूरे मनुष्य समूचे जितने समस्त प्राणी हैं, जितने पूरी दुनिया को, हम दुनिया के जो लोग हैं सबको एक समझो, उनमें प्यार, सद्भावना, अपनत्व और दया, करुणा ये स्प्रेड करो। तो ये दिस इज द बेसिक फैब्रिक ऑफ आवर सनातन धर्म। You also, so it's a very logical definition you have given, which is easily can be practiced by anyone in the world. Yes. What you spoke, कोई भी इसका पालन कर सकता है, because हर जगह अच्छे लोग हैं, दुनिया अच्छे लोगों देखिए, को ही आप कहती है। बाकी किसी भी धर्म में आप जो है क्रिश्चियन बैप्टाइज होके बनते हैं, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में आपको उनका एक रिचुअल होता है, उसके बाद आप वो जो एक मुसलमान बनते हैं। एक सिख जो है उसको अमृत चखा जाता है, फिर वो सिख बनता है। जबकि हिंदू धर्म में आप पैदा होते ही हिंदू हैं। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, द वे यू लिव योर लाइफ। हम तो कहते हैं कि सर्व धर्म समभाव। हम तो पूरी दुनिया के धर्मों को एक मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द मैसेज जो हिंदुइज्म जो है, हमारा सनातन धर्म जो है, वो दुनिया को देता है। मैं इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट लेके आता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम इज द पूरा अगर श्लोका पढ़ेंगे, द वसुधैव कुटुंबकम इज द माइंडसेट ऑफ मैग्नानिमस, but for the small minded person it is not the mindset. Now here Narad Muni says, now Chanakya has written Niti Shastra, Artha Shastra based on Narad Muni's instructions to Yudhishthir. And Yudhishthir was also known as the best Artha Shastri. Yes, according absolutely. to Mahabharata. And Sahadev was his assistant. Statesman. Yes. Statesman. And that's why my book title was The Making of a Statesman. Now, so now in the case of opposing mindset, now even in the Mahabharata time, we had opposition to dharma, big way. And Duryodhan character symbolizes that. And he follows the Kanik's instructions to Dhritarashtra, which Kanik also spoke to Dhritarashtra. That instructions he follows. Now, even today, we see adharma. Now, in the time of Mahabharata war, the Pandavas, throughout their life, kabhi jungle mein rahe, their childhood was in much difficulty. And when they grew up, they had to, even for their own kingdom, they had to fight. But they fought, keeping their faith in Krishna. That was their only basis. Like Kunti says to Krishna, that these children were orphans, and I grew them up remembering you. And therefore, you have to protect them. That's what she said. And they fought the biggest war the world has ever seen to remove adharma. Now, so Sanatana Dharma also gives you strength. Not only it gives you culture, but also gives you strength to stand against adharma in a very strong way. Somehow this message, due to colonial influence, was missed out because British were scared if anyone who learns Mahabharata will fight against adharma. So what do you want to convey in the modern parlance today? And that is relevant for America also, not just India. आपसे मैं कहूं सी, मैं बताना चाहता हूं कि जो गीता जो है, हमारे जो ये गीता is not a religious text. Gita is a manual how a person should live his life daily. How a person should live his life is Gita. You know, Gita doesn't solve your problems. Gita dissolves your problems. And for me, Gita is a manual for a human being, how he should conduct himself
in this world. For me, Gita should be made compulsory in all the schools, in colleges. We must have discourses. In fact, I'm making a play on Gita. गीता का सारा पूरा जो है वो क्या है. कृष्ण भगवान 3 आदमी से बात करते हैं. एक वो अर्जुन से बात करेगा जो सबने महाभारत देखा है, एक कर्ण से बात करेगा और एक दुर्योधन से बात करेगा, क्योंकि दुर्योधन अधर्म को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को अर्जुन करता है, और कर्ण जो है बीच में वो बटा हुआ है. एक नायक है, एक अर्धनायक है, एक खलनायक. इस तरह हम चीजें करेंगे, हम बनाएंगे बहुत सारी चीजें ताकि लोगों को पता चले. और गीता हैज टू बी कंपल्सरी. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. इनफैक्ट आपको बताऊं, एक किताब है अपना, इस महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, कॉल्ड जयद्रथ वध. मैंने उस पूरी किताब को बाय हार्ट याद किया हुआ. एंड आई डू अ soliloquy. I recite. Sometimes I'll come to America. I want to come with that and I will recite. आपके बताएंगे आपको. उसमें खूबसूरत लाइन है कि अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म. That is the essence of Gita, of Mahabharata. What a nice way you put it. And it is so dire need today, because the identity of Hindus has been completely destroyed. Followers Sanatana Dharma, they have lack of confidence, because these powerful words, these parts of scriptures, Yatharth, is never taught to them. So Gita remains a book on the bookshelf where you dust it once a year and do arti from agarbatti. But actually the real worship is to take it down and taste it like the honey jar. Unless you put and use it in your daily life. Daily life, that's right. And Gita is not a management book, another mythology. It is a book much bigger than management book, because it concerns with your soul. Yes. वो अध्यात्म तो बात की बात है. वो लोगों को पहले पढ़ें तो सही, उसको अपने रोजमर्तबा के जीवन में लेकर आए, और फिर उसके अगला स्टेप जब आप वो कर लेंगे, आप रियलाइज करेंगे यार ये तो हमें किसी और चीज से जोड़ रहा है. तो फिर जो रेल्म्स हैं, ये डिफरेंट जो रेल्म्स हैं. अब आप देखिए, जो जैसे कुंडलिनी जब जागृत होती है तो आपका मूलाधार चक्र है, फिर सहस्त्र पे आते हैं, फिर आप ऊपर आते हैं, अनाहत में आते हैं, करते करते, और आप जो ऊपर जाके फिर जो आज्ञा चक्र खुलता है आपका, एंड देन फिर आप जो है मोक्ष की प्राप्ति में लगते हैं. ये खैर एक दिन, किसी और दिन हम इस पे बात करेंगे. मैं बहुत ही डीप मैं बताता हूँ लोगों को. आई हैव डिस्कोर्सेस व्हेन आई टीच पीपल, आई मेक देम अंडरस्टैंड कि यू नो कुंडलिनी क्या है. हम इससे बहुत बात कर सकते हैं, हम करेंगे कभी आपके शो पे, या हम जब अमेरिका आएंगे हम लोगों को कोशिश करेंगे, हम जो हमने सीखा है हम लोगों को बताएं. You are very invited. Every time you and I, we can discuss on small topics like this in detail. The one last question. You did a negative role in Mahabharata, but actually your character is a very dharmic, personal. So हाँ, वो ठीक है, वो पर्दे पर तो दुर्योधन थे, बट वो फिर पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आया कि सुयोधन क्या है. Actually, Yudhishthir Maharaj always refers to Duryodhana as Suyodhan in all his talks. Yes. Always respectfully he called him Suyodhan. अब देखिए ना, युधिष्ठिर जो कहते हैं ना नीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का जो विद्वान पंडित था, उससे भी गलती हुई. That's right. देखिए, तो यही तो कहते हैं कि सारे कैरेक्टर्स ग्रे कैरेक्टर्स. मैंने एक प्ले लिखा है, हमने एक प्ले बनाया है. इट्स कॉल्ड महाभारत एंड द होल महाभारत इज डिपिक्टेड फ्रॉम दुर्योधना's and Karna's perspective. I have written it. It's in poetry form. I've written it. I've directed it. It's my own production where I play Duryodhan. And it's a 3-hour play. We're going to bring I want to bring this play to America. 3 hours, people will be mesmerized by the Krishna, the Virat roop of Krishna, and Duryodhan's arguments. वो जब युधिष्ठिर से कहता है कि पहली बात है, आपको एक तो अकेले की पत्नी नहीं थी, आप वो 5 की पत्नी थी. आपने कैसे दाव पे लगाया? पत्नी जो है क्या कोई वस्तु है? उसके आर्गुमेंट्स कमाल के हैं. वो फिर भाइयों से कहता है इसने तो दाव पे लगाया, आपने भाई को क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो आपके अग्रज थे, वो बड़े भाई थे. आपके मन में स्वार्थ था कि अगर कहीं ये हम दाव जीत जाएंगे, हम बाकी हमारा सारा राज्य जीत जाएंगे. पत्नी जो है कोई वस्तु नहीं है,
वो इक्वल चीज है, तो आपने वो नहीं किया। और भाई जो थे, आप अपने भाई को, भाई ने क्यों नहीं रोका? व्हाई डिडंट भीम स्टॉप हिम कि नो, शी इज नॉट अलोन, शी इज माय वाइफ आल्सो? वो अर्जुन ने क्यों नहीं रोका भाई को कि भाई आप गलत कर रहे हैं? तो दैट मीन्स उन्होंने भी गीता का पालन नहीं किया कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, तो वो धर्म से विचलित हुए, इसलिए महाभारत हुआ। भीष्म पितामह बैठे थे, वो जो वॉरियर था, वो चाहता तो 2 मिनट में वॉर खत्म कर देता, पर वो भी उस वक्त खामोश रहा। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ साथ धर्मराज विदुर भी शांत रहा, वो अन्याय देखते रहे। क्यों? कि शायद अगर ये एक भी जो है, और कहीं से ये युद्ध क्रीड़ा का दाव अगर युधिष्ठिर जीत जाता है तो उन्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि गिवन जो ज्ञानी सर्वज्ञानी भी होता है, कभी कभार ऐसे परिस्थितियों में आके सबसे भूल हो जाती है। तो इसीलिए सारे कैरेक्टर्स जो मैं कहता हूं ये सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं। इट इज ब्यूटीफुल, यू नो। Yudhishthir, about Yudhishthir, very clear. पिता की आज्ञा, ना धृतराष्ट्र रिस्पेक्टेड लाइक हिज फादर। पिता की आज्ञा सभी धर्मों को क्रॉस कर गई। तो नहीं, लेकिन आपकी पत्नी जो है, ये नहीं हो सकता। आपकी पत्नी है वो, आपको कोई अधिकार नहीं है पत्नी को दांव पे लगाने। आप कहते साहब मैं हार गया हूं, खत्म, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, यू टेक मी, आई डोंट, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। पिता ने आगे, क्या धृतराष्ट्र ने कहा था अपनी पत्नी को दांव पे लगाओ? नहीं। देखिए, ये क्या कि कहने का जो सबसे खूबसूरत बात है कि जो सबसे ज्ञाता था उससे भी वीकर मोमेंट में गलती होती है। यही तो खूबसूरती है महाभारत की। शकुनी ने उकसाया और वही वेंट इन आप बोलते हैं ना, चैलेंजेस आर कावर्ड्स एंड डूअर्स आर फूल्स। करेक्ट। चैलेंजेस आर कावर्ड्स। शकुनी वाज अ कावर्ड। उसको पता था कि एक बार ऐसे करूंगा तो होगा। तो दैट मींस, तो ये जो 5 विकार आ गए, 5 विकार पे आ गए। आपको अपने जो ग्रीड है, लालच है, आपको इस पे कंट्रोल करना है। That's right. ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। पुनीत जी, इट्स व्हाट ए वंडरफुल, आपके साथ बात करके लाइक आई एम स्पीकिंग टू ए realized person, and thank you so much Thank for you. sharing your time, and I'd like Thank to you. invite you again, and also if I get your link I'll send it to all the students as well as I will all the definitely send you the link. युवराज जी हैं, वो आपको हमारी फिल्म का लिंक भेजेंगे। आप प्लीज ये संहार फिल्म कहिएगा, अपने लोगों से जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो गाय का जो वर्णन, अभी गाय को ना माँ क्यों बोलते हैं लोगों को पता ही नहीं कि खाली दूध नहीं देती। आपको पता है सिर्फ हिंदुस्तान की जो गाय है जिसका एक हम्प होता है, साइंटिफिकली प्रूवन, A2 milk is only given by the Indian cow, not by the दुनिया की कोई गाय नहीं। अच्छा, न केवल दूध, काउ डंग, उसका यूरिन, काउ डंग जो यूज होता है उसमें, इट्स ए नेचुरल सोर्स ऑफ, इट्स लाइक फर्टिलाइजर। वो फ्यूल फर्टिलाइजर का काम करता है। जो यूरिन है वो आपके दवाइयों में, अमेरिका इंपोर्ट्स यूरिन, काउ यूरिन फ्रॉम इंडिया फॉर मेडिसिनल यूजेस। मतलब मरने के जो 15-20 साल तो बेचारी दूध देती है, फिर अपनी उसका गौमूत्र काम आता है, उसका काउ डंग काम आता है, और उसके बाद जो वृद्ध हो जाती है हम उसको काट के बेच दें। हमारी फिल्म के अंदर एक खूबसूरत डायलॉग है, तो वो कहते, एक जर्नलिस्ट पूछती है तो स्वामी जी को, आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर, कि स्वामी जी दूध कौन से जानवर का सबसे अच्छा होता है? तो स्वामी जी हंसते और कहते हैं, बेटी दूध तो भैंस का ही अच्छा होता है। तो वो कहती है, स्वामी जी कमाल है, आप तो गौशाला चलाते हैं और आप दूध उत्तम भैंस का बता रहे हैं। तो तब स्वामी जी कहते हैं कि बेटी, तुमने मुझे दूध के विषय में पूछा पहली बात, और तुमने कहा दूध कौन से जानवर का अच्छा होता है। तो हमारे लिए गाय जानवर नहीं, गाय हमारी माँ है, और गाय का दूध नहीं, अमृत। दूध की जो, गाय के दूध की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे ना साहब, यो आपकी चक्षु खुल जाएंगे, कितनी बीमारियां ठीक होती हैं। इट्स A2 मिल्क। तो ये सारा वर्णन हम अपनी फिल्म के अंदर इतने अच्छे तरीके से किया है, पीपल आर गंग हो अबाउट द फिल्म के सर। पहली, इससे क्या कि जो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट की जो हमने पूरे उसके, मैंने उसको फॉलो किया कि काउ स्लॉटर, व्हाई इट शुड बी बैंड, व्हाई काउ स्लॉटर शुड बी बैंड। हमने पढ़ा उसको, उसके पढ़ के हमने पूरा संक्षिप्त एक एंटरटेनिंग तरीके से हमने यूज किया है, गाय की क्यों पूजा करनी चाहिए। तो ये जरूर ये फिल्म देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा।
it's an irony that in Kali Yuga, horses are protected, dogs are protected, जी, where the most important person, the cow, is not protected, which is yes, irony of America. Article yes, 48 of Indian Constitution is the only constitution in the world that constitutionally protects cows. And Article 48 of Indian Constitution protects them. Now, it should be a very constitutional. When we are saying Constitution is our new important reference, then this article should also be implemented in India, because this is such an important article. It's the only Constitution of India which protects it. So, yeah. so now, with coming to the end of this point, what is the message you would like to give in this first show? And I would like to invite you many times on smaller topics. हाँ जी, मैं बस अपने लोगों से कहूंगा, proud to be a Hindu. Be proud that you are a Hindu. आप सनातन धर्म को बिलीव करते हैं, आप उसमें गर्व से कहिए कि आप जो हैं वो एक हिंदू हैं. And one thing more, to be a pro-Hindu doesn't mean I'm anti other religion. That's right. That's the most important thing. आप पढ़ें, अपने इतिहास पर गर्व करें, अपने कल्चर को पढ़ें. मैं तो इनफैक्ट बहुत चीजें बनाना चाहता हूं. मैं आप लोगों से इनफैक्ट कहूंगा, जुड़िए मेरे साथ और इसमें योगदान, मतलब हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम ऐसी चीजें बनाएं, हम ऐसी चीजें बनाएं ताकि लोगों को ज्ञान पता चले कि यार एक घंटा क्या होता है. डॉक्यूमेंट्री तरीके से बनाएंगे ना, लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोग नहीं देखेंगे. हम उनको एंटरटेनिंग मेन स्ट्रीम सिनेमा के जरिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा कितना रिच कल्चर है, कितनी रिच धरोहर है. Thank you so much, Puneet ji, and I will also work with you. I have your number. I'll work with you. And आप अगर मुझे एक व्हाट्सएप पे एक हेलो बोल देंगे, मैं आपको मेरी फिल्म का लिंक भी शेयर कर दूंगा. And I'll also work with you, Raj, to make sure we organize जरूर. shows in the West Coast हाँ at जी. least. अरे करिए, इतना बढ़िया शो है, मजा आ जाएगा. And we want to organize it in entire West Coast. And also, we would like to support you in your filmmaking also. These films are very much Please needed. do that. In fact, we will do, मैं आपको पता है, मैं मेरे एक और प्ले मैंने बनाया है. I made another play called रावण की रामायण. The whole Ramayana has been depicted from Ravan's perspective. It's a soliloquy. I come alone and perform. We can do seminars. We can talk on कि हम बहुत कुछ मिलके करेंगे जी. Satology will be happy to work with you. It's a non-profit American corporation, so we will be happy to work with you. And Namaskar, Puneet ji. Jai Shri Ram, Jai Jagannath. Jai Shri Ram. Okay.